बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बबल सॉर्ट का सेकंड पार्ट जो हमने पिछली लेक्चर वीडियो के अंदर हमने दो चीज़ों को प्रूव किया। नंबर वन इज़ compare how many comparison it is doing and how many swapping it is doing. So we have concluded that the time complexity of the bubble sort algorithm is order of n square, because we take the time complexity on the basis of the number of comparisons it has performed. Okay, so few interesting things I am going to talk you about. Why it is called bubble sort. तो अगर आप जो है एक सामने अगर आपके कोई दरिया हो तो आप एक हैवी पत्थर या एक पत्थर उठाएं और उसके अंदर फेंकें, तो क्या होता है कि वो जो पत्थर होता है वो पत्थर उसकी तह के अंदर जाके नीचे बेस में बैठ जाता है, ठीक। और उसके अगेंस्ट में क्या होता है, कुछ बबल्स जो होते हैं वो निकल के ऊपर की तरफ आते हैं। तो यही काम बिल्कुल बबल सॉर्ट के अंदर होता है। बबल सॉर्ट में क्या काम होता है कि जो भारी नंबर है, जो ग्रेटर नंबर है, जो लार्जेस्ट नंबर है, ये जो है जाके, ये मेरे माउस की मूवमेंट आपको दिख रही होगी, ये जाके आपकी बेसमेंट के अंदर बैठ जाता है। और इसी तरीके से जो लाइटर नंबर्स होते हैं, लाइटर नंबर्स ये उठ के ऊपर की तरफ आ जाते हैं, सही है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड, और यू कैन से दिस इज़ वन ऑफ द theory regarding that's why the name of the sort is called the bubble sort, ठीक है। तो आपको ये नज़र भी आ रहा था, heavier element is going down and lighter element are moving up. The effect is just like if you throw a stone in water, stone is heavier, it will go inside and settle on the base and bubbles come up as they are lighter. अच्छा, अब आपको दो तीन चीज़ें और बताता हूँ। नंबर वन, इन फर्स्ट पास आई गॉट द फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है, and in the second pass I got second largest element and in third pass I got third largest element. कैसे? अब आप ये देखिए, इसी वाली पिक्चर को देखिए। in the first pass जब मैंने पूरे फर्स्ट पास को कंप्लीट कर लिया, जिसमें 4 कंपैरिजन और 4 स्वैपिंग हुई, तो आई गॉट द फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट इन द बेस, ओके। and in the second pass I got the second largest element in the base. So it means I have 2 elements and one is the largest and then it is larger and then the largest one, okay. And in the third pass I have got 3 largest element, large, larger, largest. And in the fourth pass I have got the 4 largest element. So we can say that in first pass I got the first largest element, in the second pass I got the second largest element, and in the third pass I got the third largest element. So similarly we can say that if we have the elements of an array, means if I have an array of n elements and if I want to perform k pass, then I will get k largest element. This is simple. If I have 100 elements array and if I am performing 10 passes, then I will get 10 largest elements in the array. Suppose you have n elements and you don't want to sort, अगर आपके पास जो है वो n एलिमेंट्स की एरे है और आप सॉर्टिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना ही नहीं चाहते, यानी पूरे एरे को सॉर्ट नहीं करना चाहते, देन what you will do, you just want the largest element, you just want the largest element in the array. तो आप सिर्फ सिंगल एक पास परफॉर्म कर दें, फर्स्ट पास परफॉर्म कर दें and you will have the largest element of the array. And if you want the first 2 largest element, then just perform 2 passes and then you have the 2 largest element in the array without sorting the complete array. I hope you are understanding. If you want first 3 largest element, perform just the 3 passes and stop, and you will have the top 3 largest elements in the array. With the help of this algorithm we can perform selected number of passes to get the desired results. So अगर आपको 10 टॉप 10 चाहिए, टॉप 20 चाहिए, टॉप 5 चाहिए, आप उतने नंबर ऑफ पासेस जो है वो एग्जीक्यूट कर दें एंड यू विल गेट द डिज़ायर रिजल्ट्स. आई होप ये आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा. नाउ वर्किंग ऑफ बबल सॉर्ट, दैट्स व्हाई देयर इज़ अ बिट सी कोड इन्वॉल्व इन दैट एंड आई होप यू गाइज आर अवेयर विद द कोडिंग. तो मैंने एक बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम लिखा और ये बबल सॉर्ट के अंदर मैंने क्या लिखा, बबल सॉर्ट
का एक फंक्शन बना दिया मैंने, इसके अंदर एक ये एरे ले रहा है और उस एरे का साइज़ n है। मैंने इसलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया कि n एलिमेंट्स की एक एरे एज एन इनपुट इसके अंदर एज अ रेफरेंस पास हो रही है, ठीक। अच्छा, इसके बाद मैंने जो है इसके अंदर एक फॉर का लूप बनाया। फॉर का लूप फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n-1 एंड i प्लस प्लस। वो अच्छा, वाई आई हैव क्रिएटेड दिस फॉर लूप? I have created this for loop because I have to perform the operation for n-1 time। क्योंकि अगर मेरे पास n साइज़ की एरे है तो मैं कितने नंबर ऑफ पासेस करता हूँ? मैं करता हूँ n-1 पासेस। अभी आपने पिछली वीडियो में भी ये देखा, मैं दोबारा रिकॉल करा देता हूँ। when I have 5 elements in the array, I perform 4 passes. When I have n elements in the array, I will perform n-1 passes. When I will have 10 elements in the array, I will perform 9 passes. In the same way, right, when I am going to implement this bubble sort algorithm, so this outer for loop is for number of passes. So I have initialized this for with 0, I is less than n-1 and n-1 passes and i plus plus, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास पासिस के लिए, n पासिस के लिए। अच्छा, फिर मैंने एक और फॉर लूप लिया है जो कि ये अंदर का इनर फॉर लूप, व्हाट इट इज़ डूइंग, इट इज़ इनिशियलाइजिंग इट विद j इज इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन n-1 एंड j प्लस प्लस। व्हाट इट इज़ डूइंग, नाउ वी आर गोइंग बैक टू दिस पिक्चर। अगर आपको ये दिख रहा हो तो इसके अंदर क्या कर रहा है, वी आर बेसिकली परफॉर्मिंग कंपैरिजन्स। यानी ये अगर मैं कह लूँ कि दिस इज j इज इक्वल टू 0, देन इट इज कंपेयरिंग इट विद j प्लस 1, राइट। सो दिस इज डूइंग द कंपैरिजन, ठीक, हर दफ़ा कंपैरिजन कर रहा है। देन नेक्स्ट मूव के ऊपर क्या होगा कि ये जो है ये मूव हो जाएगा j1 जो है j इज इक्वल टू 0 एंड j 0 प्लस 1, ठीक है। तो j प्लस 1 का मतलब है 0 प्लस 1, तो फर्स्ट 2 नंबर्स को ये कंपेयर कर रहा है। अगले में क्या होगा, यानी फर्स्ट पास के अंदर ही अगले स्टेप में क्या होगा कि ये हो जाएगा j और ये हो जाएगा j प्लस 1 और ये हो जाएगा j और ये हो जाएगा j प्लस 1 और ये हो जाएगा j और ये हो जाएगा j प्लस 1। तो ये काम कर रहा है कौन सा, ये इनर फॉर लूप, कि ये इट इज़ परफॉर्मिंग द, what it is doing, it is performing the comparison, until the number is going to finish. And then what this minus I is doing, j is less than n-1 minus I, what it will do, it will do कि भाई अगर आप ये देखें, ये मेरे पास जो पासेज हैं तो हर दफ़ा एक पास जो है वो कम हो रहा है। यानी ये देखें कि मेरे पास 4 पास हो गए, फिर मेरे पास 3 पास हो गए और मेरे पास 2 पास हो गए। और अगर आप इसी को देखें तो यहाँ पे मेरे पास जब 4 थे तो 3 कंपैरिजन और 3 स्वैप मैक्सिमम कर रहा था। यहाँ 2 कंपैरिजन, जब 3 थे तो 2 कंपैरिजन और 2 स्वैप कर रहा था, और जब 1 है 2 हैं तो 1 कंपैरिजन और 1 स्वैप कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको माइनस करा रहा हूँ ताकि एक एक नंबर जो है वो उसका कम होता जाए। और अंदर ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कि भाई इफ़ ए जे इज़ ग्रेटर देन जे प्लस 1, यानी पहला नंबर दूसरे से बड़ा है तो तुम स्वैप कर दो। यहाँ पे मैं 3 स्टेप का स्वैप का फंक्शन, स्वैप की वैल्यूज़ भी लिख सकता था या 3 लाइन का कोड भी लिख सकता था। मैंने यहाँ पे 3 लाइन का कोड नहीं लिखा, बल्कि मैंने क्या कर दिया, मैंने एक स्वैप का फंक्शन बना दिया कि इट इज़ परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन, ठीक है। तो ये काम कर रहा है ये, और उसके बाद मैंने इस फॉर के लूप को बंद कर दिया। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, अच्छा अब जब आपने इसको बंद कर दिया तो नाउ बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सेइंग कि बबल सॉर्ट इज़ वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड, द आउटर फॉर लूप इज़ keeping the track of the passes, and the inner for loop is basically doing 2 things. Number 1, it is comparing the values of consecutive pair of the elements, and what it is doing for the next available
move, it is decreasing one comparison और वन स्वैप. सो इफ़ आई अगर मैं इसको बगैर किसी एनालिसिस के और आपको ये कहूँ कि भाई आपके पास यहाँ पे देखें दो फॉर के लूप नेस्ट हो रहे हैं, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि जब भी हमारे पास दो फॉर के लूप होंगे और वो नेस्ट हो रहे होंगे, एक के अंदर एक होगा, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. बोथ आर वर्किंग बेस्ड ऑन एन ओनली. सो ये दोनों जो है j इज इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन n, ये भी यही काम कर रहा है, और i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n, दोनों n के ऊपर काम कर रहे हैं. तो हम ये कहते हैं कि दो फॉर लूप्स नेस्टेड हैं, तो द कॉम्प्लेक्सिटी इज एज n इज 2, तो फॉर लूप आर 2, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. विदाउट डूइंग एनीथिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज order of n square. I hope you understand it. Now we are going to do the adaptive test as well as the stability test. So before to go to the adaptive test, I will do the stability test. A stability test कैसे? To check whether this sorting algorithm is stable or not. ठीक है. मैंने एक एरे लिया जिसके एलिमेंट थे 5 और n की वैल्यू इसके अंदर 5 है, और मैंने ये कह दिया कि एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर 8, 8, 3, 5 and 4. 8, 8, 3, 5 and 4. And just for the understanding purpose, what I have done, I have written one number with black marker and one number with red marker. So these two are the numbers. ठीक. और स्टेबिलिटी के अंदर आपने पिछली वीडियो क्राइटेरिया फॉर सॉर्टिंग टेक्निक के अंदर ये पढ़ा कि अगर तो मेरे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट वो नेम के हिसाब से सॉर्टेड है, और अगर मैं उसको मार्क्स के नाम से हिसाब से सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो अगर इट इज़ कीपिंग द ट्रैक ऑफ sorting when there is a duplicate element, then we can say that the sorting algorithm is stable algorithm. So we have the duplicate value I have written down with two different pens, and now what I am doing, I am trying to compare these two elements. क्योंकि ये दोनों एलिमेंट एक जैसे हैं, डुप्लीकेट हैं, इसमें से कोई नंबर जो है वो ग्रेटर नहीं है, तो इसने अपनी एग्जिस्टेंस यहाँ पे कायम रखी और नीचे वाला जो नंबर है वो ऐसे ही आ गया. ठीक है, ये ऐसे ही आ गया, इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की. इसका मतलब है ये ऊपर की तरफ नहीं गया, ये ऊपर की तरफ नहीं गया, बल्कि वो वहीं पे ही रहा. नाउ इन द सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट पास के अंदर ही, इन द सेकेंड स्टेप इट इज़ कंपेयरिंग विद दीज टू नंबर्स आर कंपेयर्ड. ठीक है, तो क्या हुआ, दीज टू नंबर, हैवियर एलिमेंट इज गोइंग डाउन, 8 इज गोइंग डाउन एंड द लाइटर एलिमेंट इज कमिंग अप. एंड इन द सेम वे इस स्टेप के अंदर मैं कंपेयर कर रहा हूँ. जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो कंपेयर करने पे हैवियर एलिमेंट इज गोइंग डाउन एंड द लाइटर एलिमेंट इज कमिंग अप, बट द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज स्टिल देयर. So you can see it when you have the duplicate element. When you have the duplicate element, the position of the first element is stable. Which what it is showing? It is showing that it has not changed. When it has not changed, then it is firm and stable. अगर तो ये ऐसा हो जाता कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट ये 8 है ब्लैक पेन से लिखा और 8 है रेड पेन से लिखा, और दोनों जो है डुप्लीकेट एलिमेंट हैं, और जब मैं इसका कंपैरिजन परफॉर्म करता तो 8 नीचे वाला ऊपर चले जाता और ये वाला नीचे आ जाता, तो तब मैं कहता कि ये स्टेबल नहीं है. बट इट इज़ what it is doing now, it is not changing the order, it is keeping the order as it is. So we can say that the algorithm is stable. Here order is not changing if 8 and 8 are greater than only interchange. अगर ये चेंज 8 ऊपर वाला नंबर जो है वो बड़ा होता और नीचे वाला छोटा होता, तब ये इंटरचेंज हो सकते थे. लेकिन क्योंकि दोनों बराबर हैं, देयर इज़ अ डुप्लीकेट वर्जन, तो डुप्लीकेट के अंदर पहली वाली ने अपनी एग्जिस्टेंस बरकरार रखी है. बबल सॉर्ट विल वर्क ओनली इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द अदर कंसेक्यूटिव एलिमेंट. ठीक है, कंक्लूजन क्या है कि अच्छा, कंक्लूजन तो मैं बाद में आता हूँ. अब ये स्टेबिलिटी आपको समझ में आ गई है, तो नाउ आई एम मूविंग towards this adaptability. Now what is adaptability?
नाउ वी आर गोइंग टू डू द एडॉप्टिव टेस्ट। एडॉप्टिव टेस्ट के अंदर अब हम ये कहते हैं कि भाई ये मेरे पास 2 3 5 7 8 है और 2 और 3 जो है वो कंपेयर हुआ, और कंपेयर होने के बाद 2 और 3 कंपेयर हुआ। अब हमें क्या देखना है कि एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट के अंदर कि अगर उसके अंदर ऑलरेडी कोई सॉर्टेड लिस्ट मौजूद है तो क्या उसका जो रन टाइम है वो मिनिमम रन टाइम हो जाएगा या नहीं होगा। अभी हम इसको चेक करते हैं। आप ये देखें कि मैंने एक ऑलरेडी सॉर्टेड एरे जो है वो ले ली है 2 3 5 7 8 एंड आई वांट टू सॉर्ट इट अगेन। सो दिस वन इज कॉल्ड j एंड दिस इज कॉल्ड j+1. सो व्हेन इट हैज डन द कंपैरिजन 2 is already lighter and 3 is already heavier, so it has done the comparison, but is there any swap performed? No. So I have written down 2 3 5 7 8 again, and this is the first pass, and this number according to the for loop this number will become j and this is j+1. ठीक है, अब इसके ऊपर मैं कंपैरिजन परफॉर्म करता हूँ तो ये लाइटर है और ये हैवियर है, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो क्या इसके ऊपर कोई स्वैप का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ? नहीं हुआ। तो मैंने इस वाले को दोबारा ऐसे ही लिख दिया। अब ये j हो गया और ये j+1, तो 5 इज लाइटर देन 7, ऑलरेडी लाइटर देन 7, तो क्या कोई स्वैप का ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया? नहीं किया। तो फिर मैं अगले वाले स्टेप के ऊपर गया। अगले स्टेप के ऊपर जब मैं आया तो 7 और 8 के दरमियान कंपैरिजन किया, तो क्या ये लाइटर और ये हैवियर है? नहीं, ये ऑलरेडी कंपेयर हुआ लेकिन कोई स्वैपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, कोई स्वैपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। अब मैं आपको ज़रा इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ एक नए अंदाज से कि विद रिस्पेक्ट टू कोड हाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज इट फर्दर। तो इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए कि भाई मेरे पास सिर्फ एक ऑपरेशन हो रहा है एंड दैट ऑपरेशन इज ओनली द comparison operation, not the swapping operation. Now we want to prove it with the help of code. ये वही कोड है जो मैंने अभी आपको बताया, और मैं इसको इस स्वैपिंग को चेक करने के लिए कि क्या एक ऑलरेडी सॉर्टेड एरे के अंदर क्या दोबारा कोई सॉर्टिंग का या स्वैपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या नहीं, तो मैंने एक फ्लैग इनिशियलाइज कर दिया और इस फ्लैग को मैंने कह दिया कि ये एक इंटीजर टाइप का फ्लैग है, और इस फ्लैग को मैंने जस्ट जैसे ही वो पास के अंदर आता है, जैसे ही पहले पास के अंदर फर्स्ट पास के अंदर आएगा उसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और 0 से इनिशियलाइज करने के बाद दिस इज़ बेसिकली परफॉर्मिंग द स्वैप ऑपरेशन। और इस स्वैप ऑपरेशन के जैसे ही मैं स्वैप ऑपरेशन से बाहर निकलता हूँ तो मैं ये स्वैप ऑपरेशन के अंदर ही मैंने अगर तो कोई स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो उस फ्लैग को 1 कर दो, अगर तो कोई स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो इस फ्लैग को 1 कर दो। इस फ्लैग को वो जितनी टाइम 1 कर देगा इसका मतलब है मुझे पता चल जाएगा कि भाई कोई स्वैप का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। तो मैं इस फॉर के लूप से बाहर निकला, इनर वाले फॉर के लूप से बाहर निकला, और मैं यहाँ पे आउटर वाले फॉर लूप पे ये चेक कर लेता हूँ कि क्या फ्लैग की वैल्यू 0 है, इज इक्वल्स टू 0 है। अगर फ्लैग की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 है तो ब्रेक कर दो। इसका मतलब है कि देयर इज नो स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म। सो व्हेन देयर इज नो स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म देन इट मीन्स द लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। If flag is 0 then swapping has not done. If flag is 0 then swapping has not done means that there is no swapping operation performed. अच्छा जी, ये है इनर लूप जो मैंने बताया। दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, दिस कंडीशन हैज फेल्ड। वाई दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू एंड दिस कंडीशन हैज फेल्ड? वाई कि जब वो पहले एलिमेंट को चेक कर रहा है 2 इज ग्रेटर देन 3, नो दिस कंडीशन इज 2 इज ग्रेटर देन 3। यहाँ पे आप देखिए 2 इज ग्रेटर देन 3, पहला कंपैरिजन कर रहा है तो 2 इज ग्रेटर देन 3, दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू मीन्स 2 is greater than 3, no this condition is not true, 2 is not greater than 3, so this condition is failed. So when this condition is failed then it means first time the condition is false. फिर जब वो दूसरे उसके लिए चेक कर रहा है, दूसरे उसके लिए क्या चेक कर रहा है, अब ये j की पोजीशन यहाँ है, 3 is greater than 5, no, तो 3 is नॉट ग्रेटर देन 5, तो कंडीशन इज अगेन फेल्ड।
ठीक, फिर तीसरे के लिए परफॉर्म कर रहा है, क्या 5 इज ग्रेटर देन 7? नो, द कंडीशन इज अगेन फेल्ड. सो कंडीशन इज अगेन फेल्ड. इट इज ओनली डूइंग द कंपैरिजन, नॉट परफॉर्मिंग द स्वैपिंग. इज 7 is greater than 8? No, 7 is not greater than 8. So it is only doing the, it is only performing the comparison, not swapping. And that's why I am checking it after the for loop. If the flag is equals to 0 and if the flag value is equal to 0, it means there is no swapping operation has done inside the operation. So if comparison is done only and swap is not done, we can say that the list is already sorted. ये बिल्कुल अहम बात है कि अगर कंपैरिजन हो रही है और स्वैपिंग नहीं हो रही तो हम ये कह सकते हैं कि वो लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है. इफ देयर इज नो स्वैपिंग देन दिस द लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड. इफ द लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड एंड इट विल स्टॉप आफ्टर फर्स्ट पास ओनली. क्यों फर्स्ट पास ओनली के बाद ये स्टॉप हो जाएगी? अगर लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है तो फर्स्ट पास, जो ये फर्स्ट पास है, अगर आप ये इसको ज़रा गौर से देखें, ये फर्स्ट पास है. मैंने यहाँ पे कोई दूसरा पास नहीं बनाया, तीसरा पास नहीं बनाया, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था कि मैंने पहला पास बनाया, ये मेरे पास दूसरा पास था, ये मेरे पास तीसरा पास था और ये मेरे पास चौथा पास था. तो यहाँ पे मैंने कोई पास नहीं बनाया, सिर्फ एक पास बनाया और एक पास के बाद ही क्या हो जाएगा? वो स्टॉप हो जाएगा. इफ द लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड इट विल स्टॉप आफ्टर द फर्स्ट पास. सो व्हाट वी कैन एनालाइज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, व्हाट इज द टाइम टेकन व्हेन और लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड? इट इज परफॉर्मिंग ओनली वन पास. Only one pass means number of comparison. How many comparisons it is doing? How many comparisons it is doing? It is doing only n minus 1 comparison. How many swaps it is doing? It is doing only 0 swaps. So when it is performing only n minus 1 comparison, तो मैं minus 1 को हटा दूँ तो it is order of n. So the minimum time taken by the bubble sort algorithm is order of n and the maximum time taken by the bubble sort algorithm is order of n square. सही है. दिस इज मिनिमम रन टाइम व्हेन द लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड एंड दिस इज मैक्सिमम रन टाइम व्हेन द लिस्ट इज नॉट ऑलरेडी सॉर्टेड. आई होप सो बाय इटसेल्फ इट इज़ एडॉप्टिव. और वी, अच्छा, एक सवाल और आता है कि क्या बबल सॉर्ट जो है वो बाय इटसेल्फ जो है बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम एडॉप्टिव होता है या हम उसको बनाते हैं एडॉप्टिव? जी नहीं, ये बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम जो है ये एडॉप्टिव नहीं होता. वी इम्प्लीमेंट इट इन कोडिंग एंड बाय सेटिंग द फ्लैग वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 एंड कंपेयरिंग दैट इफ द फ्लैग वैल्यू टर्न्स ग्रीन और 1 or 2 or whatever, then we can say that there is some swapping operation performed or done. So when there is some swapping done, then it is maximum runtime, and when there is no swapping done, then the flag value is same as 0. So it means there is no, it is already sorted, so it has executed in minimum runtime.